Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Science, chapter 3, lecture 3 of chapter Adaptation in Animals. Before starting today's lecture, first of all, we will quick recall of our previous lectures. Now we are familiar with words habitats and adaptation. According to their habitats, animals are divided into 5 groups: terrestrials, aquatic, amphibian, aerial and arboreal. Adaptation for food. Different animals eat different types of food. According to their food habits, animals can be classified as herbivores, carnivores, omnivores, parasites, and scavengers. Now, in today's lecture, we will study about some other points related to adaptation. First of all, adaptation for protection. Every animal protects itself from its enemies and surroundings. It is very important for an animal to protect itself and continue to live and reproduce. There are several ways by which animals can save themselves. Now, adaptation for protection. Protection means अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को बचाना. हर एनिमल अपने आप को अपने एनिमीज से और अपने सराउंडिंग से बचाना चाहता है. इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप को अपने एनिमीज से बचा के रखे और तभी वो जिंदा रह पाएगा और रिप्रोड्यूस कर पाएगा. हर एनिमल अपने आप को सेफ रखने के लिए अलग अलग तरीके से अपनी सराउंडिंग को अडेप्ट करता है. Some animals escape from their enemies because of their speed and swiftness. कुछ एनिमल्स अपने आप को अपने एनिमीज से अपनी स्पीड की वजह से बचा लेते हैं क्योंकि वो बहुत तेज रन करते हैं. इस वजह से वो अपने एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. Rabbits, hares and rats make burrows deep into the soil to escape from enemies such as eagles, owls and cats. कुछ एनिमल्स लाइक रैबिट्स, हेयर्स एंड रैट्स ये अपने आप को अपने एनिमीज लाइक आउल, ईगल्स और कैट से बचाने के लिए सॉइल में, ग्राउंड में डीपली अपना बरो, अपना बिल बना लेते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. Whales, elephants and hippopotamus protect themselves from other animals by their big size. They are too big to be eaten by other animals. हमें पता है whales, elephants and hippopotamus. These animals are very big in size. ये बहुत बड़े होते हैं, इसलिए ये दूसरे एनिमल इनका शिकार नहीं कर पाते और इन्हें नहीं मार पाते. तो इनका प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है? इनका प्रोटेक्शन इनके साइज की वजह से हो सकता है. इनका साइज इतना बड़ा है कि इन्हें कोई दूसरा एनिमल मार के नहीं खा पाता है. Some animals can escape from their enemies because of their color and body shape, so that they can merge with their surroundings. Polar bear is difficult to locate in snow because of its white color.
Chameleon can change its color to merge its surroundings. This is called camouflage. कुछ एनिमल्स अपने आप को कैसे बचा पाते हैं? क्योंकि उनका कलर और उनका बॉडी शेप ऐसा होता है जो उनकी सराउंडिंग के साथ मर्ज हो जाता है, मीन्स मिक्स हो जाता है, सो दैट उन्हें लोकेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. लाइक पोलर बियर. पोलर बियर व्हाइट कलर के होते हैं और उनका शेप भी ऐसा होता है कि इन्हें आसानी से बर्फ में या स्नो में लोकेट नहीं किया जा पाता. ऐसे ही कैमेलियन यानी गिरगिट अपने आप का कलर अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है. इसे ही कैमोफ्लेज बोलते हैं. Tigers and zebras have stripes on their bodies which help them to merge with their surroundings, usually in long grass and plants of the forest. Tigers और zebras इनकी bodies पर stripes होते हैं जो इन्हें लॉन्ग ग्रासेस में या फॉरेस्ट में अपने आसपास की सराउंडिंग्स में मर्ज कर देते हैं और इससे ये अपने आप को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. लीफ इंसेक्ट्स लुक लाइक अ लीफ while the stick insects look like the twigs of a plant. Their color and shape merge so well with the surroundings that it is very difficult for the enemy to detect their presence. Leaf insect and stick insect ये अपने आप को अपने सराउंडिंग के साथ इतनी अच्छी तरह से मर्ज कर लेते हैं कि इनके जो एनिमीज होते हैं ये नहीं डिटेक्ट कर पाते कि ये एक्चुअल में है या नहीं. लाइक इसमें आपको दिख रहा है स्लाइड में कि लीफ इंसेक्ट ये बिल्कुल लीफ की तरह लग रहा है, इसकी कलर भी बिल्कुल लीफ की तरह है. एंड जो ये स्टिक इंसेक्ट है ये भी बिल्कुल टहनी की तरह लग रहा है, तो उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है. इस तरह से ये अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं. नाउ माइग्रेशन. Regular movement of birds and animals in large numbers to escape from unfavorable conditions is known as migration. It is generally seasonal. Siberian crane migrates to India every year. कुछ बर्ड्स और एनिमल्स अपने आप को अपनी अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए कुछ समय के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, जिसे माइग्रेशन बोलते हैं. मोस्टली ये सीजनल होता है, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन के लिए होता है. लाइक साइबेरियन क्रेन ये हर साल मीलों का सफर तय करके इंडिया में आते हैं, क्योंकि विंटर के टाइम में ये इनका जो नेटिव प्लेस है वहां पर विंटर बहुत कोल्ड होता है जो इनके लिए सूट नहीं करता. तो उस टाइम के लिए ये इंडिया में आ जाते हैं और थोड़े टाइम बाद वापस चले जाते हैं. इसी तरह हमारे पास में ही सुल्तानपुर नेशनल पार्क है. यहाँ पे भी हर साल बहुत से बर्ड्स आते हैं, कुछ टाइम के लिए रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं. तो इसे माइग्रेशन बोलते हैं. माइग्रेशन भी अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए एक एडेप्टेशन ही है. नाउ in this lecture we have seen adaptation for protection, how animals protect themselves from their enemies and surroundings. It is important for animals to protect themselves
and continue to live and reproduce. Different animals protect themselves by different ways. And what is migration? So, on the basis of this lecture, here is your book exercises. Take the correct answer. Which of the following adaptation is found in camel? Camel में किस तरह का adaptation होता है? Thick skin, broad pads, store fat or all of these? तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज. कैमल की स्किन भी थिक होती है, उनके पैड्स ब्रॉड होते हैं एंड दे कैन स्टोर फैट. इन दिस वे दे कैन अडेप्ट देमसेल्फ इन डेजर्ट्स. सेकेंड, लॉन्ग लिम्स एंड टेल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. लॉन्ग लिम्स और टेल ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? एरियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स और पैरासाइट्स. राइट आंसर इज आर्बोरियल एनिमल्स. द एनिमल्स हु कैन लिव मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ट्रीज. तो इनके लॉन्ग लिम्स और टेल इनको जंप करने में और क्लाइंब करने में हेल्प करती है. तो राइट आंसर इज आर्बोरियल एनिमल्स. थर्ड, हाइबरनेशन इज. हाइबरनेशन क्या है? ए, समर स्लीप ऑफ प्लांट्स, बी, विंटर स्लीप ऑफ प्लांट्स, सी, समर स्लीप ऑफ एनिमल्स एंड डी, विंटर स्लीप ऑफ एनिमल्स. द राइट आंसर इज winter sleep of animals. Hibernation is winter sleep of animals. समर में कुछ एनिमल्स बहुत सारा फूड जो है वो स्टोर कर लेते हैं और ड्यूरिंग विंटर इनएक्टिव हो जाते हैं, तो इस स्लीप को ही हाइबरनेशन बोलते हैं. फोर्थ, स्क्विरल्स एंड monkeys are aerial animals, terrestrial animals, amphibian animals or arboreal animals. The answer is arboreal animals. Animals who can live most of the time on trees are called arboreal animals. So squirrels and monkeys are arboreal animals. Fifth one, the movement of large group of animals to avoid the unfavorable conditions to a safe place is known as. Large number of animals जो ग्रुप में अब एक जगह से दूसरी जगह पर, सेफ जगह पर थोड़े टाइम के लिए चले जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन, हैबिटाट, माइग्रेशन और एस्टिवेशन. द आंसर इज माइग्रेशन. द मूवमेंट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स टू अवॉइड द अनफेवरेबल कंडीशन टू अ सेफ प्लेस इज नोन एज माइग्रेशन. हाउ डू द फॉलोइंग एडेप्टेशन help the animals? Write in one sentence each. Hump of a camel. कैमल का जो हम्प होता है वो कैसे एडेप्टेशन में हेल्प करता है? इट इज रिजर्वायर ऑफ फैट एंड वाटर. इसके हम्प में फैट एंड वाटर स्टोर रहता है, इसीलिए ये काफी दिनों तक पानी और बिना खाने के सरवाइव कर सकता है. सेकेंड, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ. इट हेल्प्स टू रीच लीव्स ऑफ द टॉल प्लांट्स. जिराफ की नेक लंबी होती है, इससे ये लंबे जो ऊंचे पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां आसानी से खा सकता है.
Third, scales of a snake. Snakes move with the help of scales. स्नेक की जो बॉडी पर स्केल्स होते हैं उनकी हेल्प से वो मूव कर सकता है या क्रॉल कर सकता है इजीली. फोर्थ, शार्प कर्व्ड फ्रंट टीथ इन टाइगर. शार्प कर्व्ड फ्रंट टीथ help them to tear and eat the flesh. टाइगर के जो फ्रंट के टीथ शार्प होते हैं और कर्व्ड होते हैं उनकी हेल्प से वो फ्लैश को इजीली टीयर कर सकता है और खा सकता है. फिफ्थ, स्ट्राइप्स ऑन द स्किन ऑफ अ ज़ेब्रा. ज़ेब्रा की स्किन पे जो स्ट्राइप्स होते हैं, स्ट्राइप्स हेल्प देम टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स. ज़ेब्रा की जो स्किन पे स्ट्राइप्स होते हैं उनकी हेल्प से वो सराउंडिंग्स में मर्ज हो जाता है और अपने आप को एनिमीज से प्रोटेक्ट कर पाता है. लॉन्ग लेग्स इन सम बर्ड्स लाइक क्रेन. क्रेन या कुछ और एनिमल्स बर्ड्स जो होते हैं इनके लॉन्ग लेग्स होते हैं. टू वॉक इजीली इन मड एरिया. ये इनको हेल्प करते हैं जो मडी एरिया होता है, मिट्टी या जहां पे पानी और मिट्टी ज्यादा होती है वहां पर ये इजीली वॉक कर सकते हैं अपने लॉन्ग लेग की हेल्प से. नाउ क्वेश्चन, व्हाट मेक्स सम एनिमल्स मर्ज विद सराउंडिंग्स. कुछ एनिमल्स अपने आप को अपने सराउंडिंग से मर्ज क्यों कर लेते हैं? आंसर इज सम एनिमल्स मर्ज विद सराउंडिंग्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज. अपने आप को अपने एनिमीज से बचाने के लिए कुछ एनिमल्स अपने आप को अपने सराउंडिंग से मर्ज कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू सम एनिमल्स माइग्रेट. कुछ एनिमल्स माइग्रेट यानी एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों चले जाते हैं? आंसर इज सम एनिमल्स माइग्रेट टू एस्केप फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस. इट इज जनरली सीजनल. कुछ एनिमल्स माइग्रेट हो जाते हैं, कर जाते हैं क्योंकि वो उनकी जो कंडीशंस होती हैं रहने की पर्टिकुलर जगह पे वो सूट नहीं करती उन्हें, तो वो थोड़े टाइम के लिए वहां से दूसरी सेफ जगह पर चले जाते हैं. और मोस्टली ये फॉर एक सीजनली होता है, कुछ समय के लिए ही होता है. नाउ होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर 3. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. Why do the eagles and other birds of prey have strong and curved beak? कुछ बर्ड्स जैसे ईगल जो अपने मतलब जिन्हें शिकारी पक्षी भी बोलते हैं, इनके स्ट्रॉन्ग और कर्व्ड बीक क्यों होते हैं? आंसर इज द ईगल्स एंड अदर बर्ड्स ऑफ प्रे हैव स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक to tear the flesh of their prey. इनके स्ट्रॉन्ग और कर्व्ड बीक होते हैं ताकि ये अपने शिकार को फ्लैश को आसानी से टीयर कर सके. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट मेक्स बर्ड फ्लाई. बर्ड्स कैसे उड़ सकती हैं? आंसर इज बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई. देयर बोन्स आर होलो which make them light in weight. Shape of their body also help them to fly easily. Birds जो होते हैं सबसे पहले तो वो क्यों उड़ सकते हैं? क्योंकि उनके पास विंग्स होते हैं और उनकी बोन्स होलो होती हैं, बीच में से खोखली होती हैं जिससे उनका वेट बहुत लाइट रहता है और इनकी बॉडी की जो शेप होती है वो भी इन्हें फ्लाई करने में उड़ने में हेल्प करती है. तो दीज आर द आंसर. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट,
Animals that eat both plants and animals are known as dash. ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? Omnivores. Animals that eat both plants and animals are known as omnivores. Second, animals that live both in water and on land are known as dash. Animals जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? Amphibians. Animals that live both in water and on land are known as amphibians. Third, snakes crawl with the help of dash on their body. Snakes कैसे crawl कर सकते हैं? With the help of scales on their body. Snakes crawl with the help of scales on their body. Fourth one, animals having thick fur which is white in color are seen in dash region. Answer is polar region. ऐसे एनिमल्स जिनके थिक फर होते हैं बॉडी पर और वाइट कलर के होते हैं ऐसे एनिमल्स कहाँ मिलते हैं? ऐसे एनिमल पोलर रीजन में मिलते हैं. तो आंसर इज एनिमल्स हैविंग थिक फर which is white in color are seen in polar regions. Fifth, dash feet help ducks to swim in water. कैसे फीट डक्स को स्विम करने में हेल्प करते हैं? आंसर इज वेब्ड. वेब्ड फीट हेल्प ducks to swim in water. So that is all for today. Thank you and happy learning.